من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تق حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلال کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامر پتم کی درس ووت اسہ حقوق العباد متعلق پڑھن حقوق العباد مز کیا فضیلت اور کمن لکن ہند کیا حقوق چھ بہرحال ان کا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر آ گیا آز یہ زن پتم درس تر مز پڑھو اسہ کہ کم چیز اکس انسانس حقوق العباد ادا کرنے نش رکاون اس میں سب سے پہلی وجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ بخل تھا اور دویم وجہ بیان کرنے پہلی وجہ تو کبر اور تکبر تھا دوسری وجہ بخل تھا بہرحال تکبر کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سند رسولن ات متعلق وعید بوزنومت وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا اور بخل کی کیا یہ زن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شناعت بیان کی ہے اور احادیث میں اس کی کتنی قباحت بیان کی گئی ہے اس کا بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر آ گیا آج کس درسس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد ادا نہ کرنک تریم سبب بیان کورمت کہ لوگ کیا حقوق العباد ادا کرنے نش کتراون تو اس کی تیسری وجہ بیان کی گئی والذین ینفقون اموالہم رعاء الناس وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی تریم وجہ یس زن حقوق العباد ادا کرنے نش یہ زن یہ رکاوٹ انسان وہ ہے ریا یعنی دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا قدرتی طور پر یس انسان ریا خاطر یا دکھاوے خاطر کا کام کرے وہ تبھی وہ کام کرے گا جب کوئی دیکھنے والا ہوگا جب اس کو اس کام پر داد ملے گی جب اس کو اس بات پر یا اس کام پر تحسین ملے گی سو انسان یس پانی کا عمل کا کر صرف خدا سند رضا خاطر اس کو اس بات کی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی مجھے اس پر واہ واہ کرتا ہے یا نہیں کوئی مجھے دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے اور جو ایسا آدمی ہوتا ہے جو ریاکار ہوتا ہے سہ بہرحال ہمیشہ ات ٹوہس مز کہ کھانا گھے میں وشن وول آسن تیل کر بہ یہ کام اور ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑا ناصور ہے کہ آج لوگوں میں ریاکاری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے ہم تب انفاق کریں گے جب کوئی دیکھنے والا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ سے وتم تم سات مال خرچ کر یم سات وشن وول آس اور ہم نے اکثر دیکھا ہے ہماری مسجد میں یا آپ کے پاس اگر کوئی ایسا شخص چندہ کرنے کے لیے آتا ہے جس کے ساتھ جان پہچان ہوتی ہے اس کو ہم زیادہ چندہ دیتے ہیں اس کے برعکس ایک ایسا آدمی جو غیر ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو ہم زیادہ چندہ نہیں دیتے ہیں اگرچہ وہ اس سے بھی بہتر کام کرتا ہو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم اصل میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کی رضا کے لیے اصل میں یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو تیسری وجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے اس حقوق العباد کے حقوق العباد ادا کرنے سے جو انسان کو روکتی ہے وہ ہے ریا سو انسان اس ریاکار آسن وہ تبھی حقوق ادا کرے گا جب ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے اسے کوئی دیکھے گا یم سات تمس وشن وول آس کی اس وقت وہ حقوق ادا نہیں کرے گا بلکہ صحابہ صاحبن متعلق آمد حضرت غالباً ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمان کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جیسے تم لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو یعنی رسول اللہ سندس دورس مز پنین نیکین یت پہ چھپاون
जैसे आप लोग गुनाहों को छुपाते हो, यानी इतना हमारा एहतमाम होता था कि अत मज गश्न रियाओ का शोब गसुन क्या। ये रिया कितनी बड़ी, क्या माना, ये कितना बड़ा गुनाह है और इसकी कितनी बड़ी नहुसत है। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अकिस पन्निस हदीसस मज इस रिया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के साथ जोड़ दिया है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्निस हदीसस मज रिया जोड़मुत कत सत, शिर्कस सत। अकिस हदीस मज फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का एक मजमुआ बैठा हुआ था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि मुझे तुम लोगों पर किसी बात का इससे ज्यादा डर नहीं है कि तुम लोग रिया यानी शिर्क असगर में मुब्तला हो जाओ। यानी रियाज खतर कुछ लफ्ज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल, शिर्क असगर। तो ये इतना बड़ा और इतना संगीन गुनाह है। और अकिस हदीस मुस्नद अहमद उसमें रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि मन सल्ला युराई, जिसने नमाज पढ़ी दिखाने के लिए, फकद अशरक, उसने शिर्क किया। और इसी तरह फरमाया जिसने रोजा रखा लोगों को दिखाने के लिए, उसने भी शिर्क किया। जिसने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया लोगों को दिखाने के लिए, उसने भी क्या किया, शिर्क किया। इसलिए इतना संगीन और इतना बदतरीन गुनाह है कौन, रिया। बहरहाल ये तीसरी वजह है लोगों को, जो लोगों को हुकूकुल इबाद अदा करने से बहरहाल रोकती है। वल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, अब इसकी ये सजा देखिए अल्लाह तबारक व तआला क्या बयान करते हैं। वल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, जो लोग अपने माल को खर्च करते हैं, रिया अन्नास, किस लिए, लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनूना बिल्लाह, हालांकि उनका ईमान अल्लाह पर नहीं होता है, वला बिल यौमिल, और आखिरत के दिन पर भी उनका यकीन नहीं। अब कितनी शदीद आयत है ये। मुफस्सिरीन की लेखन कि जो लोग रिया करते हैं, यानी जो लोग लोगों को दिखाने के लिए अपना अमल करते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज इस्तेमाल किया वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, कि ऐसे लोग न तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं न तो आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। क्यों? तिकाज रियाकार असल में अपने इस अमल का बदला और जजा किन से चाहता है, लोगों से चाहता है, और वो लोगों को खुश करने के लिए ये अमल करता है। जबकि हकीकी मोमिन जो होता है वो अमल करता है अल्लाह को खुश करने के लिए और आखिरत में इसका बदला वसूल करने के लिए। तो कुदरती तौर पर जो आखिरत में बदला वसूल करने के बजाय लोगों से वसूल करे बदला, इसका ये वसूल करना चाहे, और अल्लाह को खुश करने के बजाय लोगों को खुश करने की कोशिश करे, तो कुदरती बात है न तो उसका ईमान सही माना में अल्लाह पर है और न तो आखिरत के दिन पर है। तो इतनी शदीद वईद इस रिया के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है कि वला युमिनूना बिल्लाह, ऐसे लोग न तो हकीकी माने में अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वला बिल यौमिल आखिर, और न हकीकी माना में ये किस पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर। अच्छा, ये तो एक वईद थी, एक तो इनका ये हाशिर है, और ये पोजीशन खुदायस नजदीक। और क्या है, वमन यकुनि शैतान लहू करीनम फसाअ करीना, अल्लाह तबारक व तआला फरमान, अच्छा जिन लोगों का करीन कहते हैं दोस्त को, करीन कहते हैं साथ वाले को, यह बिल्कुल नजदीक आस, यमिस सत इंसान वथन बेहन आस, यमिस सत इंसान पनुन तमाम ताल्लुकात कायम आस करन, तमिस अरबियस मज वनन करीन। और करीबी दोस्त के लिए भी अरबी में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है, करीन। तो अल्लाह ताला फरमाता है वमन यकुनि शैतान लहू करीना, जिस इंसान ने शैतान को अपना करीन बना लिया, अपना करीबी दोस्त बना लिया, फसा करीना, बस कितना बदतरीन दोस्त उसने अपना चुन लिया। यानी रियाकार को क्या बताया गया, रियाकार एक तो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाता है, दूसरा उसका सबसे करीबी दोस्त और करीन वो कौन चुन लेता है, शैतान को चुन लेता है। क्यों? क्योंकि शैतान की ही ये कोशिश होती है कि लोग असल में अपने अमाल को जाया करें और उसको लोगों के लिए बहरहाल वो करते फिरे। हदीस में आमद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो, और मैंने ये हदीस आपके सामने 12 बार ये बयान की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो, कयामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों का मुकदमा पेश किया जाएगा, यानी कयामत तो यमन लुकन हुंद फैसला गोडनेथी करन, उनमें से सबसे पहले ऐसे एक शख्स को लाया जाएगा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ होगा। इस खुदा से वत में क्या है गुमत। अब अल्लाह उससे पूछेगा, बताओ मेरे बंदे आपने मेरे लिए क्या किया, वन सच क्या करो मान खतर। बहरहाल ये फख्र से कहेगा, ये शख्स कहेगा, बारिला खुदा आपने मुझे एक ही जान दी थी और सबसे एक अजीज चीज जो मेरे पास थी वो मैं आपके रास्ते में कुर्बान करके लाया हूं। बहरहाल यीशु आमद कर, यानी मैं शहीद होकर आया हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए अमिस हदीस में आमद कज़्ज़ब्ता, तूने झूठ कहा,
यानी चवनत क्या अपोज। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा असल में आपकी नीयत ये थी, आपकी ख्वाहिश ये थी कि लोग मुझे दुनिया में जर्री कहें, लोग मुझे दुनिया में बहादुर कहें, लोग मुझे बड़ा शजाअत वाला कहें। वो तो लोगों ने आपको कहा दुनिया में, आपको तो उस अमल का सिला दुनिया में ही मिला। अब मेरे पास क्या है? आपके पास जहन्नम के दौराओं को कहा जाएगा मुंह के बल घसीट कर इसे जहन्नम में ले जाओ। गो ये अमल तो बज़ाहिर कुछ बोड़ अमल उस, बज़ाहिर ओसम पनुन पान कोरमुत कुर्बान खुदाई से, मगर इसमें रिया था। क्योंकि ये काम किन के लिए था? लोगों की खुशनुदी के लिए था। इसलिए सबसे पहले इसके लिए जहन्नम का हुक्म सादिर होगा। इथे पर आलिम अन्न, आलिम से कहा जाएगा बताओ आपने मेरे लिए क्या किया। बहरहाल ये कर अर्ज ये बारिला खुदाया सारी उम्र करम, ये सारी उम्र मैंने इल्म हासिल करने में खर्च की। पहले इल्म को हासिल किया, फिर लोगों तक इल्म को पहुंचाया, आपके दीन की इशाअत की। बहरहाल ये मैंने किया। अल्लाह तबारक व तआला वन अमिस ते कज़्ज़ब्ता, नहीं तू झूठ बोल रहा है। बहरहाल दपस चे ये इल्म अम खतर हासिल कोरमुत कि दुनिया में लोग तुझे बड़ा आलिम कहें, बड़ा युजर पीर कहें, और बोड़ बार बनने से क्या मुफ्ती या चवन्ने बोड़ बार आलिम। लोगों ने तो दुनिया में वो तुझे कहा, जो सिला तुझे चाहिए था वो तुझे दुनिया में मिल गया। अब मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। जहन्नम के दारोगों को कहा जाएगा कि जहन्नम के बल घसीट कर, ये मुंह के बल घसीट कर इसको कहां ले जाओ? जहन्नम में ले जाओ। बाज़ाहिर कज़ा बड़ अमल सारी उम्र कारी क्या वन सरफ इल्म के हुसूल में, हदीस पढ़ने में, कुरान पढ़ने में, और फिर लोगों तक इसको पहुंचाने में, मगर नीयत ये थी और इस नियत अमल में रिया शामिल था, ये लोगों की खुशनुदी के लिए था। तो ये सारा अमल किसका बाइस बन गया? जहन्नम में दाखिले का बाइस बन गया। और हदीस में आमुद एम्पति ब्याक शख्स अन्न जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारा माल अता किया होगा। अमिस अल्लाह तबारक व तआला ने वारिया ज्यादा अता कोरमुत फजल पानुन। बहरहाल इससे भी कहा जाएगा ऐ म्यानी बंद वन तो म्यानी खतर क्या करुत? तो ये भी कहेगा कि बारिला खुदाया तूने मुझे बहुत माल से नवाजा था, मैं रात दिन तेरे रास्ते में खर्च करता था। बहुत रात दोहस चाय वात क्या कर, कभी दारुल उलूम को देता था, कभी मस्जिदें तामीर करता था, कभी खानकाहें बनवाता था, कभी मैं मुजाहिदों के लिए बहरहाल पैसे खर्च करता था, बहरहाल अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करता था। अमिस अल्लाह तबारक व तआला का ज़ब्ता, तूने झूठ कहा। दपे तुझ अपुज वन, तूने ये पैसा इसलिए खर्च किया ताकि लोग तुझे बड़ा सखी कहें, ताकि लोग तुझे हातम ताई कहें। लोगों ने तो दुनिया में तुझे वो कहा, दुनिया में ये पसंद हो ये व्यसन हो तू वो ना दुनिया क्यों। बहरहाल आपको तो वासिला मिल गया, मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। जहन्नम के दौरागों का कहा जाएगा मुंह के बल घसीट कर इसको ले जाओ कहां पर? बाज़ाहिर कज़ा बड़ा अमल चाहिता पसंदीदा माल ये कोरे अल्लाह ताला से वाजिब खर्च, मगर चूंकि रिया इसमें शामिल था इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल को भी उसके लिए जहन्नम के दाखिले का जरिया बनाया। अवै आयतनस वन कि वो लोग जो अल्लाह के जो अपना माल या कोई अमल लोगों के दिखावे के लिए करते हैं, हकीकत में वो न तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, न तो आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, और वो अपना साथी, अपना करीबी दोस्त और हमनवा किसको चुन लेते हैं? शैतान को चुन लेते हैं। फसा अकरीना, और वो कितना ही बदतरीन और कितना बुरा साथी है। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वमाज़ा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब अल्लाह तबारक व तआला ये तो गौर के बीच आय कारण अत कबाहत बयान, पहले तकब्बुर की बुराई बयान की गई, फिर बुखल की बुराई बयान की गई, इसके बाद किसकी बुराई बयान की गई? ये जन रियाज ये बयान कर। अब थोड़ा गसल दीपात जब किब्र का बयान आया तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिम फखूरा, कि अल्लाह तबारक व तआला किब्र करने वाले पसंद करन, तो जिनको पसंद नहीं करता है उनको क्या करता है? फिर नापसंद करता है। गो मुतकब्बिर इंसान च अल्लाह तबारक व तआला नापसंद। दयम जब बुखल की बारी आई तो वहां क्या कहा गया था? वअअतदना लिल काफिरीना अज़ाब मुहीना, अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के लिए क्या तैयार करके रखा है? दर्दनाक अज़ाब। गो बुखल करने वालों को किन की साथ में खड़ा किया गया? काफिरों की साथ में खड़ा कर दिया गया। किब्र करने वाले को, मुतकब्बिर को अल्लाह के नापसंदीदा शख्सों में शुमार किया गया, बुखल करने वालों को काफिरों की साथ में खड़ा किया गया, और जो अल्लाह के रास्ते में जो अल्लाह के जो अमल करते हैं रिया उसमें शामिल होता है, उनको किन के साथ शामिल किया गया? बेईमानों के साथ, यानी उनमें हकीकी ईमान, और उनको शैतान के साथियों के साथ खड़ा किया गया। अब अल्लाह तबारक व तआला यहाँ उमन वईद बोजनान
یا उमन डरान खोजनान कि यम चीज मा करियो, किबर मा करियो क्या, बुखल मा करियो क्या और रिया मा करियो क्या। अब अल्लाह तबारक ताला समझाने के एतबार से और इनको अच्छी तरह से नसीहत करने के एतबार से यही बात दोबारा कहते हैं, वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू, अरे इनका क्या बिगड़ता। यानी अल्लाह तबारक ताला शिवाय वन उमन क्या शफकत सान और प्यार सान बी तरीक समझावन, वमाज़ा अलैहिम, अरे इनका क्या बिगड़ता या इन्हें इससे क्या कमी होती, लौ आमन बिल्ला, अगर ये अल्लाह पर ईमान लाते। यानी अगर ये अमल किसके लिए करते, अल्लाह के लिए करते, अगर ये बुखल के बजाय अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, वमाज़ा अलैहिम, इनका क्या नुकसान होता, लौ आमन बिल्ला, अगर ये अल्लाह पर ईमान लाते, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान लाते, व अनफकू, और खर्च करते अपने माल को, मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने उनको अता किया है, किसके लिए, अल्लाह के लिए, वकान अल्लाह बिहिम अलीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इन चीजों पर या इन पर निगरान है। यानी वो खूब जानता है कि कौन अल्लाह के लिए अमल करता है और कौन लोगों के दिखावे के लिए अमल करता है। आखिरी आयत वक्त गो, अलबत्ता इसका जोड़ इसी आयत के साथ है, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा। अब किसी के दिल में ये इश्काल पैदा मत हुआ होगा कि खुदाई में यीता शदीद वईद मन कम खातिर, यानी इन अमलों पर इतनी वईद, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह तबारक व तआला छा यूत ज़ालिम, अल्लाह तबारक व तआला छा यूत पकड़ करन वोल। अल्लाह ताला फरमान, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला एक जर्रा बराबर भी, मिस्काल बराबर भी इन पर जुल्म नहीं करता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला छुन पन्नन बंदन पर जुल्म करन के, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, ला यज़लिमु, नहीं जुल्म करता, मिस्काल ज़र्रा, एक मिस्काल या एक जर्रे के बराबर। बहरहाल जर्रा युजन छ, जर्रा हो आम मतलब छ निवन पार्टिकल जर यथ वन या लकूट युजन जर छ प्यूत। अलबत्ता अरब में इसको एक और लफ्ज के लिए भी, एक और माना में भी इस्तेमाल किया जाता था। अरबिक लुक वन जो वो सुर्ख रंग की चोटी होती है, वजिज रेहियस आसन लकड़, उसको भी अरबी में कहते हैं जर्रा। तो अल्लाह अरबस मज मशहूर, ये वन है लकूट चीज तमिस बयान कर, हकीर चीज बयान कर, उसके लिए वो इस्तेमाल करते थे कौन, जर्रा। ये वन क्या दितम रे हंदिस कलस बराबर ये चीज है, तो वो भी इस्तेमाल करते थे जर्रा इसी के लिए, यानी सुर्ख रंग की बिल्कुल ये जन हकीर साइज जन चोटी है, तो उसके बराबर भी अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर जुल्म नहीं करता है। व इन तको हसनतन, हाँ अल्लाह की करीमी देखे, बल्कि अल्लाह तो इतना करीम है, व इन तको हसनतन, अगर तुम कोई नेकी लेकर उसके पास आ जाओ, यानी अगर तुम दरबारस मजीव का नेकी है, युज़ाइफ़हा, वो इसको बढ़ाकर और बढ़ाकर देता है। यानी जब आप अल्लाह के रास्ते में कोई नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला नेकी के बदले में सिर्फ आपको एक नेकी का अजर नहीं लिखता है, बल्कि इसको बढ़ाकर आपको अजर देता है। बल्कि कुरान पाक से अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि जब आप कोई नेकी करते हैं तो फलहु अश्रु अमसालिहा, उसकी मिसाल ऐसी है कि हम उसको 10 गुना बढ़ाकर आपके सामने पेश करते हैं। यानी 10 गुना क्या दिवन, क्या वन तमुक नकद इनाम तो दिवन। और सूरह बकरा में हमने पढ़ा, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ संबला, कि उस शख्स की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में कोई चीज खर्च करता है, उसकी मिसाल ऐसे शख्स की है जिसने कोई दाना जमीन में बोया और उससे 7 बालियां 7 हेल द्राय और प्रेत हेलिस द्राय हाथ फल गो, मतलब गो अकिस दान फलिस कोस गन बढ़ावन 7 हाथ गन। और वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु मन यशा, अल्लाह चाहे तो इससे भी बढ़ाकर दे सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमान, बुशिस न पन्नन बंदन पर जुल्म करने वाल के, मैं अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता हूं, बल्कि जब तुम कोई नेकी लेकर आते हो तो मैं उसको बढ़ाकर आपको उसका सिला बयान करता हूं। बल्कि कुछ अमाल ऐसे हैं जिनके मुतलिक हदीस में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला लाखों दर्जा बढ़ाकर भी उनका सवाब बंदे को अता करता है। बहरहाल व इन तक़ु हसनतन युज़ाइफ़हा, और अगर तुम कोई नेकी लेकर आते हो या नेकी करते हो, युज़ाइफ़हा, अल्लाह तबारक व तआला उसको बढ़ाकर आपके सामने पेश करता है या बढ़ाकर उसका बदला देता है। व युति मिन लदुन्हु अज्रन अज़ीमा, एक तो ये नेकी का बदला देता है अल्लाह तबारक व तआला, इसके अलावा क्या देता है, व युति मिन लदुन्हु अज्रन अज़ीमा, और अपनी तरफ से इसके अलावा आपको अजर भी अता करता है। एक तो इसके बदले में आपको बदल देता है नकद,
दूसरा अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपको अजर और सवाब भी अता करता है। ये पढ़ने हदीस में आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमो ज़कात देने से माल में कमी नहीं होती है। ज़कात दिन से मालस में कमी गसन क्या, बल्कि इससे माल बढ़ता है। इनसे माल क्या गो, ये तो नकद फायदा बनने के लिए हुआ कि एक तो ज़कात भी अदा हो गई, दूसरा उससे उसका माल भी बढ़ गया, तीसरा क़यामत दो अल्लाह में अजर दे। वो कितना करीम रब है, एक तो बदल भी देता है और उसको बढ़ाकर भी बदला देता है। दूसरा फिर बदले पर ही नहीं बल्कि आखिरत में इसके बदले में क्या अता करता है, अजर भी अता करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर बंदू से मुखातिब होकर कहता है इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता है। बल्कि हदीस में आमद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर 70 माओं से भी ज्यादा मेहरबान है। ये 70 माह आमतौर पर तर्जम 70 माह जो ना, 70 का लफ्ज असल में अरब में इस्तेमाल होता था कसरत के लिए, यानी कसरत खतर इस्तेमाल, यानी माओं से भी ज्यादा रहम करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। बल्कि अकिस हदीस में आमुत अकिस जंग किस मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूम दित, बहरहाल लोगों ने वहां पर वहां आग जलाई हुई थी, तो एक औरत उसका बच्चा वहां पर खेल रहा था, कौशल पर खोखुज और ये बार बार कोकुन गसन अत नारस कुन। बहरहाल माँ अपनी शफकत की वजह से इसको बार बार वापस खींचती थी। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर वुच तो बहरहाल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तुम प्रेत मौका पे ये मौका गनीमत जान की जहां पर तरबियत का मौका होता था साहबा की, वहां साहबा की तरबियत करते थे। बहरहाल साहब सब कर मुतवज्जा दोप यमिस माज कुन वुचन ये मौज कित कटन पन्नी शफकत की वजह से अमिस बच्चस क्या करन, इसको आग से बचाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस माँ से भी ज्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला हसा अमिस माज हिंद खोत पन्न बंदन पे, वो कैसे चाहेगा कि उसके बंदे किस में दाखिल हो जाएं, आग में दाखिल हो जाएं। तो यही बात यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है, बल्कि वो तो इतना करीम आका है, वो तो इतना सखी दाता है कि वो एक नेकी के बदले में उसको 10 गुना बल्कि कभी 700 गुना और कभी लाखों गुना बढ़ाकर आपको देता है, और इसके अलावा वो अपने हाथ से इस अमल पर अजर भी अता करता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से मांगो दुआ कि रब्बुल आलमीन करने रहमत उम्मीदवार। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।